students, a hearty welcome to all into the new session of Shiksha College and our official YouTube channel Shiksha College. So I hope you all came here with a bright mind and curiosity to learn, to gain knowledge on commerce. So I would like to congratulate you all for choosing commerce as your career guide. So I am sure that you join this course by considering the various factors. The factors in the sense your family member, you insist you to join this course, to choose this course, or maybe your friend, or maybe your older brother, sister, and some relatives. They definitely guide you to choose this course. So here today I am going to congratulate you all because you are definitely select a very dynamic course which will definitely will shape your career along with your sharp your knowledge. And secondly, I am very much thankful to you and appreciate your action, your way to select Shiksha College, because here we are dedicated to provide you classes on commerce topic, various commerce topic. So primarily we aimed to serve the +2 commerce, that is intermediate in commerce. So what are the topics that we create video classes? Those are all based upon or concentrate upon the +2 syllabus. Along with that, don't think these topics are only required for +2, but these topics are required throughout your life. Because see students, in my first introduction video, I explain you the value of commerce in the society. In the whole society, what we are, the environment, what we see, in the whole environment, we are basically doing two activities. Number one is economic and number two is non-economic. Non-economic or social activity. What we are bound or cohesive with our relative, our friends and our day-to-day activities, that is to eat, to sleep, to study, okay, and to maintain our relation with friends, with relatives, okay, and how to smoothly run our livelihood. That is our non-economic activity or which is social activity. I hope मैंने वो जो इंट्रोडक्शन क्लास में वो अच्छे तरीके से समझाया था कि क्या होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और विच इज नोन एज सोशल एक्टिविटी. बाकी जो दूसरा पार्ट है विच इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके, वो जो पार्ट है उसका आई कैन से प्राउडली मैक्सिमम पोर्शन इज कवर्ड बाय कॉमर्स. कॉमर्स स्ट्रीम जो है ना, कॉमर्स स्ट्रीम जो आर्ट्स वाले, साइंस वाले जो भी काम करते हैं उन लोगों को भी रिक्वायरमेंट आता है कॉमर्स का. बिकॉज जो कि है, सोच लो कि एक मेडिकल है, वहां पे मैनेज कौन करता है कि कितने बेड हैं, कितने पेशेंट्स हैं, किसको कितना टाइम देना पड़ेगा, कितना मतलब जो डिजीज के लिए क्या मेडिसिन चाहिए, वो कहां से आएगा, कैसे अच्छे से आएगा, कैसे हम स्टोरेज करें, ट्रांसपोर्ट कैसे यूज करें, बेड को कैसे अच्छे से रखें और उसके लिए मतलब डिजीज के लिए कितना फीस चार्ज करेंगे डॉक्टर को. ये सारा चीज क्या है? ये सारा चीज है मैनेजमेंट. वी हैव टू मैनेज. बाकी जो पॉलिटिक्स, जो आर्ट्स में आता है पॉलिटिक्स, वो सब भी क्या करते हैं? मैनेज ही करते हैं. इट मींस मैक्सिमम पोर्शन इज कवर्ड और अंडरटेक और कंट्रोल बाय द कॉमर्स स्टूडेंट्स. ओके, मींस द कॉमर्स एमिनेंट, कॉमर्स प्रोफेशनल्स. ठीक है कि तो इसी की वजह से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आप लोगों ने ये जो टॉपिक को, ये जो कोर्स को चूज किया, क्योंकि दिस कोर्स विल डेफिनेटली ब्राइट योर करियर. डेफिनेटली आई एम श्योर.
क्योंकि ये जो टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दिस इज इन कॉमर्स वी आर गोइंग टू डील विद द प्रैक्टिकल थिंग्स, नॉट द थ्योरेटिकल थिंग्स। थ्योरी बहुत कम है, प्रैक्टिकल जो भी हम पढ़ेंगे, नो डाउट वी आर गोइंग टू लर्न इन थ्योरी, बट ऑल आर बेस्ड अपॉन प्रैक्टिकल थिंग्स, व्हाट आर गोइंग और व्हाट आर हैपन इन आवर सोसाइटी, इन आवर एनवायरमेंट। जो कुछ भी हो रहा है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है, क्या होता है, हम कैसे गेन करते हैं, हम कैसे अपने लाइवलीहुड को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? तो फॉर दैट रीजन आई एम हियर, congratulate you all and also thankful for choosing our college and for choosing our YouTube channel and subscribing our YouTube channel for your career and for clearing your doubts and knowing new concept on commerce. So here we are here dedicated to provide you value class, quality class on different topic. Okay, so from today onwards we are going to provide you classes relating to your course, relating to your syllabus, which is available with you, or if not available, need not to worry. Okay, I am going to discuss, or I am not going to discuss because I have already discussed that thing in the first class. In the first class I have already discussed with you what are the topics there in commerce. ठीक है, तो कॉमर्स में क्या क्या होता है वो हम सब्सिक्वेंटली, जो कि इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बता चुके हैं. From today onwards we are going to discuss about the specific topics in a specific classes. That is, basically you have 4 main topic in commerce, that is accountancy, business studies and management, business mathematics and statistics, and fundamentals of entrepreneurship. Along with that, others are also there. I hope this video is subscribed by many of students. So many of students may have the 4th elective, that is fundamentals of entrepreneurship. May different students of different college may have different 4th elective, that is some may have IT, some have banking, some have insurance. Okay, so that's why our focus is on fundamentals of entrepreneurship. Clear? So if you are taking fundamentals of entrepreneurship in the 4th elective, then you videos are available here. But if not, then don't worry, we will definitely provide you other videos for your convenience. Okay, so let us start the class. So from today onwards I am going to take your business studies and management class. And students, in the commerce field, this paper is the most important paper along with accountancy. Clear? Accountancy is very important. Commerce means accounts. Commerce का मतलब है accounts. उसके साथ साथ आपको ये जो है ना business studies का knowledge भी होना चाहिए. Because see, if I take a simple example, if your parents doing a particular business, any business, कुछ भी ले लो, जो भी आपके पेरेंट्स करते हैं, ठीक है, तो वो बिजनेस करते हैं. कुछ भी एक ले लो कि फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर आप बेचते हो. योर पेरेंट्स आर यूज्ड टू रन दैट बिजनेस एंड यू आर टोटली अपार्ट फ्रॉम दैट बिजनेस बिकॉज यू ऑल आर नाउ कंप्लीटिंग योर 10th स्टैंडर्ड. सो टिल नाउ you all are busy with your study, so you definitely not entered to the business, and business में आपको कोई भी relation नहीं था. But now someday if your father now ask you to please come and take some activity or please join us and learn something about the business and do some business, तो ले लो एक दिन क्या हुआ कि आपके पेरेंट्स एब्सेंट हैं, ठीक है, वो नहीं जा पाएंगे शॉप में, तो आपको रेस्पॉन्सिबल हुआ कि संडे है, ले लो, कॉलेज आपका छुट्टी है, संडे है, तो एज रिक्वेस्टेड बाय योर पेरेंट्स कि आओ थोड़ा देखो, बिजनेस को समझो, क्योंकि फ्यूचर में आपको ही ये टेक ओवर करना है कि नहीं. तो आप इसलिए संडे टू संडे जा रहे हो. संडे एक संडे है, आपके पेरेंट्स का दिमाग, चलो ले लो कि कोई तबीयत खराब हो गया, वो लोग नहीं आ पा रहे हैं, आपको बोले कि आप संभल पाओगे, तो आप क्या बोलोगे, आप संभल पाओगे? इज इट पॉसिबल
Yes, is possible. How? See, if I will tell you to handle a particular product, so what is the basic requirement? If I will give you a iPhone or whatever phone, any Android phone or iPhone, and I am saying to please operate or do this by using that phone. So what you need, you must have clear knowledge about that particular thing. क्योंकि देखो सिंपल, एक चीज के साथ जाने से पहले हमें क्या चाहिए कि उसका प्रॉपर नॉलेज हमें होना चाहिए. फॉर डूइंग ए बिजनेस यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट बिजनेस. ठीक है, तो अकाउंट करो. जब आप बिजनेस शुरू करोगे, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम सिंपली रिकॉर्ड करते हैं, वो है अकाउंटेंट का काम, अकाउंट्स का काम. ठीक है, वो आपको सिखाया जाएगा कि आप कैसे, मतलब जो चीजें होते हैं, ठीक है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम कैसे रिकॉर्ड करना है, उसमें एक्सपेंसेस कैसे डालना है, इनकम कैसे डालना है, फिर फाइनली प्रॉफिट लॉस कैसे फाइंड करना है, वो आप सीखोगे इन आवर सब्सिक्वेंट क्लासेस. ठीक है, बट ये तो हो गया, आप बिजनेस करोगे तब ये सब होगा. बट करोगे कैसे? करने के लिए आपको क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए. किसका नॉलेज? बिजनेस का नॉलेज, कि बिजनेस क्या होता है, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये मतलब ये होता कैसे है. ठीक है, सो इन आवर इंट्रोडक्शन क्लास आई हैव गिवन द ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बिजनेस होता क्या है, क्या क्या हम कर सकते हैं. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज स्टिक टू आवर इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, मतलब किसी भी चीज को करने से पहले आपको वो चीज को थियोरिटिकली अच्छे से समझना पड़ता है, उसका नॉलेज गेन करना पड़ता है, तभी आप वो चीज को लेके प्रैक्टिकल चीजें कर सकते हो. है कि नहीं? अगर मैं आपको, जैसे मैंने बोला कि एंड्रॉइड फोन दे दूं, आईफोन दे दूं, आपको कुछ एक काम करने के लिए बोलूं, तो वो आप अभी तक कोई भी अगर फोन यूज नहीं कर रहे हो तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए कि वो ऑन कैसे होता है, मतलब जो आप काम बता रहे हो उसका कौन सा ऐप है, वो ऐप हम कैसे ओपन करेंगे, कैसे साइन इन करेंगे, देन उसके अंदर कैसे जाएंगे. यू मस्ट हैव थियोरिटिकल नॉलेज, उसके बाद आप वो प्रैक्टिकल में करोगे. आपको मैंने दे दिया एक बाइक आ गया, अभी तक आपने कभी भी बाइक नहीं चलाया है और एनी व्हीकल, आपको मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं कि आपको कोई भी बोल रहा है कि ये बाइक लेके आओ, राइड करो बाइक, तो क्या चाहिए? पहले थियोरिटिकल नॉलेज कि ये बाइक क्या है, इसमें कितने गियर हैं, इसका फ्यूल कैसे ऑन होता है, इग्निशन कैसे ऑन होता है, ये ऑफ कैसे होगा. है कि नहीं? यू मस्ट हैव थियोरिटिकल नॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल. थियोरिटिकल नॉलेज से क्या होता है, हमारा दिमाग जो खाली है एक पर्टिकुलर फेनोमेनन को लेके, वो थोड़ा थोड़ा भर जाएगा, 50% कंप्लीट हो जाएगा. मतलब यू हैव थियोरिटिकल नॉलेज, देन यू इट विल क्रिएट ए कॉन्फिडेंस अमॉन्ग यू कि चलो ये मैं प्रैक्टिकल करूंगा, क्योंकि आई हैव नॉलेज, मुझे पता है. नो डाउट मैंने ये कभी नहीं किया, बट थियोरिटिकली मुझे पता है ये कैसे होगा. बट एक बार करूंगा, गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, फिर करूंगा, देन विल डेफिनेटली इट विल, मतलब आप उसमें पूरा परफेक्ट हो जाओगे. बट फर्स्ट थिंग व्हाट यू रिक्वायर्ड, फर्स्ट थिंग यू रिक्वायर्ड टू नो द थियोरिटिकल नॉलेज. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट यू आर गोइंग टू लर्न theoretical knowledge about business, theoretical knowledge about business. ठीक है, तो ये मैंने जैसे लिखा है कि एन इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन क्यों है कि हमने एक इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने दिया था, ये क्लास में भी हम थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे एक टॉपिक को कि क्या क्या है इसके अंदर और क्या क्या हम करेंगे. ठीक है, तो क्या होता है, देखो ये जैसे मैंने देखा है, देखो बिजनेस स्टडीज, इसको मैंने एक तरीके से अंडरलाइन किया है और मैनेजमेंट को दूसरे तरीके से अंडरलाइन किया है. क्यों? बिकॉज टू मैनेज, मैनेज मतलब करना, डूइंग, मैनेज मतलब ले लो डूइंग बिजनेस, टू डूइंग बिजनेस यू मस्ट हैव नॉलेज. है कि नहीं? फॉर डूइंग बिजनेस यू मस्ट हैव नॉलेज. सो ये भी वैसा ही है. फॉर मैनेजमेंट यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट योर बिजनेस स्टडीज. बिजनेस स्टडीज मतलब हियर ये क्या मिलेगा आपको? कॉन्सेप्चुअल. ओके, कॉन्सेप्चुअल थिंग्स, नॉलेज अबाउट बिजनेस, conceptual knowledge about business and its format. ठीक है,
conceptual things or knowledge about business and its format. Format मतलब क्या है, क्या कैसे, फॉर्मेट मतलब है ना पूरा ब्लूप्रिंट, ये क्या है, इसके अंदर क्या है, इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या हम कर सकते हैं, करने से क्या होगा, कैसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ये जो सारे चीजें हैं ये आपको इसमें बताया जाएगा। जो बाकी नेक्स्ट वाला चीज है वो क्या है, दैट इज प्रैक्टिकल, ओके, दैट इज प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑन हाउ टू मैनेज योर बिजनेस, ओके, हाउ टू मैनेज योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस को मैनेज कैसे करोगे, कंट्रोल कैसे, मैनेज मतलब चलाना, रन करना, दैट इज सिंपल, क्लियर। नॉलेज डूइंग बिजनेस, नॉलेज मतलब यह है बिजनेस स्टडी जहां पे कि आपको मिलेगा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, एंड देन डूइंग बिजनेस यू गेट द प्रैक्टिकल नॉलेज कि मैनेजमेंट होता क्या है, ये चीजें क्या है, फर्स्ट आपको आ गया समझ में, देन ओनली यू कैन मैनेज दोस थिंग्स, ठीक है, आ रहा ना समझ में। मैं आपको बोलूंगा कि अपना सामान संभालो, अपना चीज संभालो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव नॉलेज कि अपना सामान क्या है कि नहीं। आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स मैंने बोला जो जो तुम्हारा है वो उसको तुम मैनेज करो, लेके जाओ घर, तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव नॉलेज कि इसमें से मेरा क्या है, व्हाट बिलोंग्स टू मी, फर्स्ट नॉलेज, देन ओनली यू कैन मैनेज टू कलेक्ट दिस थिंग्स, हाउ टू कलेक्ट एंड हाउ टू कैरी दोस थिंग्स इनटू योर होम, ओके। तो होता क्या है कि ये जो है ना बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट पेपर आपका जो है कॉमर्स में आप जो पढ़ोगे आपका 2 years है, दैट इज डेफिनेटली योर 11 एंड योर 12th, ओके, इसको हम बोलते हैं +2 फर्स्ट ईयर, ओके, और ये है +2 सेकेंड ईयर, क्लियर। सो अगर आप अपना मतलब हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब किए हो तो आप देखे होगे कि सेकेंड ईयर का क्लासेस ऑलरेडी बहुत सारा हो रहा है, चल रहा है, तो उसमें आपको क्या नॉलेज मिल रहा है कि हाउ टू मैनेज, मतलब एवरीथिंग इन द सेकेंड ईयर आर बिलोंग्स टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को ओरिएंटेड है, मैनेजमेंट का ओरिएंटेड मतलब हाउ टू मैनेज, हाउ टू रन बिजनेस स्मूथली, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। और ये आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो हैं, अगर आपको चाहिए, नाउ फॉर योर नॉलेज, फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू these are required but not now, because first of all you must have knowledge about this, then only you can clearly understand about this। इसके बदले मतलब इसको छोड़ के अगर आप डायरेक्ट सेकंड सीढ़ी पे जाओगे, अगर आपको स्टेयरकेस में ऊपर जाना है तो व्हाट यू मींस डू, फर्स्ट स्टेयरकेस, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ, है कि ऐसा है कि नहीं। अगर आप डायरेक्ट सेकंड में जाओगे तो डेफिनेटली यू मे सक्सीड, बट देयर इज अ चांसेस ऑफ फेलियर, आप स्लिप हो सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम आपको ऐसा गाइड करेंगे कि यू कैन नेवर बी स्लिप, आप स्लिप ना हो, इसके लिए हम गाइड कर रहे हैं। इसलिए पहले डायरेक्ट हम बोलेंगे कि सेकंड सीढ़ी पे मत जाओ, पहले फर्स्ट देन सेकंड, फर्स्ट आपको ये कंप्लीट करना है, देन उसके बाद ये आपको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना फर्स्ट ईयर में हम इतना टॉपिक पढ़ेंगे, ये जो +2 फर्स्ट ईयर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, बिजनेस स्टडीज, बिजनेस को पूरा का पूरा स्टडी करेंगे, स्टडी मतलब पूरा का पूरा समझेंगे कि क्या है बिजनेस, बिजनेस क्या है, बिजनेस एंड एवरीथिंग सराउंडिंग द बिजनेस। मतलब बिजनेस ले लो, एक पेड़ है, वो पेड़ के ईच एंड एवरीथिंग को हम पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब ये पेड़ में उसका रूट क्या है, उसका स्टेम क्या है, उसका ब्रांचेस क्या है, उसके फ्रूट्स क्या हैं, उसके फ्लावर्स क्या हैं, इसके फूड क्या है, इसके आउटकम क्या है, फ्रूट्स का वैल्यू क्या है, फ्रूट्स का टेस्ट क्या है, मतलब ये पेड़ कितना लंबा हो सकता है, कितना घना हो सकता है, आ रहा है ना समझ में। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जो कि अभी तक आप पढ़ रहे हो, मतलब मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं जो कि आपके पास नॉलेज है, पेड़ के ऊपर आपको नॉलेज है, बॉटनी आपने पढ़े होंगे, है कि नहीं, बायोलॉजी बॉटनी ये सब में, तो आपको पता है कि पेड़ उसका मतलब क्या होता है, रूट होता है, स्टेम होता है, उसका फूड आता है, जो फूड मतलब जो वाटर मिनरल्स आता है, फिर उससे खाना बनाता है कि नहीं, पत्ता, लीव्स, आवर ब्रांचेस, आवर फ्रूट्स, आवर फ्लावर्स, देन द डेंसिटी ऑफ द ट्री, है कि नहीं, कितना लंबा हो सकता है, कितना घना हो सकता है। तो यही ले लो बिजनेस, यही हम समझेंगे कि बिजनेस मतलब ले लो पेड़,
तो मतलब इसका रूट क्या है, मतलब ये शुरू कैसे होता है, कैसे बढ़ता है, किसके ऊपर डिपेंड होता है कि नहीं, इसका क्या क्या ब्रांचेस हैं, कैसे हम कर सकते हैं, इसका फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स का वैल्यू क्या है, उसका टेस्ट क्या है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द थिंग्स. Okay, so in our first year classes we are totally dedicated upon business studies. ठीक है, ओके क्लियर, आगे समझ में. तो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि अभी हमारा फोकस यहां पे नहीं है. तो ये जो है ना, ये जो टॉपिक के लिए मैंने आपको पहला जो है अपना इंट्रोडक्शन क्लास, उसमें हमने जाना था क्या कि व्हाट इज बिजनेस, है कि नहीं. व्हाट इज बिजनेस मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी तक आपके पास क्या क्या नॉलेज है. व्हाट इज बिजनेस, यू हैव अबाउट नॉलेज, है कि नहीं. ह्यूमन एक्टिविटीज, है कि नहीं, ह्यूमन एक्टिविटी व्हाट वी लर्न दैट इज इकोनॉमिक, है कि नहीं, एंड और होता है नॉन इकोनॉमिक. ये सुनो, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है. देन हमने क्या देखा कि ये जो बिजनेस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, है कि नहीं, जिसमें कि बिजनेस में हम क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस, बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं, जिसमें कि हमने देखा सोल ट्रेड क्या है, हम सोल ट्रेड कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, है कि नहीं, सोल ट्रेड पार्टनरशिप कर सकते हैं, कंपनी कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, है कि नहीं. क्लियर, ये सारा का सारा नॉलेज आपके पास है. क्लियर. तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी हमने डिफाइन किया था कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या आता है. इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम कर सकते हैं क्या, एक तो होता है इंडस्ट्री, है कि नहीं, और दूसरा होता है कॉमर्स. यस, इंडस्ट्री और कॉमर्स रहता है कि हम इंडस्ट्री मतलब क्या करेंगे, कॉमर्स मतलब क्या करेंगे. तो आई होप जो पहला क्लास है आपने अच्छे से देखा होगा. अगर आपने वो क्लास को अच्छे से नहीं देखा तो आई विल इंसिस्ट, आई विल रिक्वेस्ट, सजेस्ट यू टू प्लीज वॉच दैट वीडियो, देन कम टू दिस वीडियो. ओके, क्योंकि ये वीडियो में हम क्या करेंगे, अभी ये सारे चीजों को फिर मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा आपको. ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसके आगे बढ़ेंगे. ठीक है, मतलब ये जो चीजें नो डाउट मैंने आपको ब्रीफली समझाया था कि बिजनेस क्या होता है, हम कैसे कर सकते हैं. इन द सब्सिक्वेंट क्लासेस हम क्या करेंगे कि ये सारे चीजों को इन डिटेल्ड वे हम पढ़ेंगे. अभी मैंने आपको जस्ट ब्रीफली बोल दिया था कि सिंपल वे में क्या क्या होता है, कैसा होता है कि नहीं. क्लियर, बट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दिस थिंग्स इन ए डिटेल्ड मैनर, जो कि आपका सिलेबस है. एक एक पॉइंट को, एक एक पार्ट को हम डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे. ओके, क्लियर, अंडरस्टैंड. सो आपका जो सिलेबस है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इन ए ब्रीफ मैनर, है कि नहीं. ब्रीफली मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जो कि अपना सिलेबस है कि नहीं. कि सिंपल होता क्या है, जो बिजनेस का वर्ल्ड होता है ना, बिजनेस का वर्ल्ड वेरी लार्ज होता है. अगर हम देखेंगे एक एक चीज को हम कंसीडर करेंगे तो उसके अंदर हम पूरा घुस सकते हैं. मतलब एक एक अंदर जाएंगे तो उसके अंदर एक एक दुनिया है. बट अगर हम कन्फाइंड वे में देखेंगे, सिंपल वे में देखेंगे, ठीक है, तो भी एक सिंपल वे में हम वो चीजों को याद रख सकते हैं, है कि नहीं. क्लियर. तो वो जो होता है, क्लियर, मतलब वो जो एक मैं डायग्राम आपको बताऊंगा, वो डायग्राम में पूरा का पूरा बिजनेस आ जाता है. वो डायग्राम में पूरा का पूरा बिजनेस आ जाता है. तो क्या है वो डायग्राम, चलो देखते हैं वो जो डायग्राम क्या है. सो एज आई सेड, द फुल business can be described with a single diagram. In a single picture we can describe the business. Here you can see the diagram that we draw about the business. So what actually happened, see, human beings all are doing some activity. Human beings, those are human activity. So we are basically doing two type of activity, that is economic and non-economic activity. So what is non-economic, or we call social activity, जो कि
मतलब इट इज नॉट रिलेटेड टू अर्निंग समथिंग, मतलब इकोनॉमिक मतलब टू अर्न समथिंग, कुछ अर्न करने के पीछे हम जो जो करते हैं, जो जो काम करते हैं, कुछ पैसा कमाने के लिए, कुछ पैसा लाने के लिए, वो पैसे से ही हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक क्या आता है, जैसे कि इसमें आता है जैसे कि रिलीजियस वर्क, हम पूजा पाठ करते हैं, है कि नहीं, गॉड के ऊपर बिलीव करते हैं, प्रे करते हैं, ये जो सारे सोशल वर्क, सोसाइटी में हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं अपने प्रेस्टीज के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, जीने के लिए, खुश रहने के लिए। ठीक है, देन सस्टेनमेंट ऑफ लाइवलीहुड, हम अपने जिंदगी कैसे अच्छे से गुजारा कर पाएंगे उसके लिए हम जो काम करते हैं। ठीक है, देन अरेंजमेंट ऑफ फूड एंड शेल्टर, फूड शेल्टर क्लॉथ, जो कि होता है अपना बेसिक रिक्वायरमेंट, फूड शेल्टर एंड क्लॉथ, क्लियर। देन सोशल प्रेस्टीज, प्रेस्टीज भी हमें चाहिए, प्रेस्टीज पाने के लिए हम जो जो काम करते हैं, है कि नहीं, प्रेस्टीज मतलब एक रेपुटेशन पाने के लिए हम जो भी करते हैं। देन हेल्प एंड हेल्पिंग, हेल्प मतलब हम दूसरों से हेल्प लेते हैं, हेल्पिंग दूसरों को हेल्प करते हैं सोसाइटी में। अटेंडिंग पार्टीज ऑफ फ्रेंड रिलेटिव, फ्रेंड बनाना, रिलेशन तो ऑलरेडी है, हम रिलेशन बनाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं। ठीक है, अच्छे काम बुरे काम में हम एक दूसरे को क्या कंसोल करते हैं, ठीक है, उनको मोटिवेट करते हैं। ठीक है, और उनके खुशी में, उनके गम में हम शामिल होते हैं, ये सारे होते हैं अपने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देन केयर फॉर आवर हेल्थ, फैमिली एंड एनवायरनमेंट, हम जो अपने हेल्थ के लिए केयर लेते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए केयर लेते हैं, अपने एनवायरनमेंट कैसे, एनवायरनमेंट मतलब अपना जो हम जहां पे रहते हैं, अपना एरिया ले लो, अपना घर ले लो, साफ सुथरा रखते हैं, ये हिसाब से हम जो जो काम करते हैं। देन एक्टिविटीज टू लिव हैप्पीली, अच्छे से एक जिंदगी जीने के लिए, खुशी से, हैप्पीली जो जो काम हम करते हैं, these are all are called activities to live happily. So these are all are the examples of non-economic activity that human being do or actively they are doing for this purpose. Okay, तो ये जो सारे पर्पज फुलफिल हो सकते हैं स्टूडेंट्स, अच्छे से ध्यान रखो, ये जो सारे काम फुलफिल हो सकते हैं कब, ओनली व्हेन यू हैव ए इनकम सोर्स, आपके पास जब कुछ इनकम हो, कुछ अर्निंग हो, पैसा हो। ठीक है, जब पैसा होगा तभी आप कुछ कर सकते हो। इफ यू हैव नो मनी देन यू कैनॉट गेट और फुलफिल योर दीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो फॉर फुलफिलिंग दोज एक्टिविटी यू मस्ट डू सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिससे कि पैसा कमाना है। कैसे कमाएंगे हम पैसा? बेसिकली देयर आर थ्री वे, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड बिजनेस। जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बोला है कि एम्प्लॉयमेंट मतलब एक जन के अंदर काम करना, मतलब एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करना, आपने स्टडी किया, आप में कुछ नॉलेज आ गया, कुछ काम आप सीख गए, देन आप किसी भी एक अंदर, मतलब किसी भी एक कंपनी के अंदर, एक बॉस के अंदर आप काम करोगे। क्या काम करोगे? जो आपको पता है, एनीथिंग ले लो, सॉफ्टवेयर ले लो, हार्डवेयर ले लो, कोई रिपेयर ले लो, कोई सर्विसमैन ले लो, कोई भी ले लो, डिफेंस ले लो, सब सारे के सारे होते हैं एम्प्लॉयमेंट। मतलब यू एम्प्लॉय योर सेल्फ, क्लियर, यू एम्प्लॉय योर सेल्फ अंडर ए सुपीरियर, अंडर ए बॉस, जो कि आपसे काम करवाएगा, उसके बदले में आपको पैसा देगा। मीन्स योर इनकम इज टोटली डिपेंड अपॉन योर एक्टिविटी टुवर्ड्स दैट एम्प्लॉयर, और व्हाट द एम्प्लॉयर आस्क यू टू डू, यू हैव टू डू दोज थिंग्स, एंड मंथली और डेली बेसिस यू विल गेट योर बेनिफिट, दैट इज यू अर्न योर इनकम। ठीक है, ये ले लो, आप लेबर ले लो और सैलरीड पर्सन ले लो, कोई भी ले लो, जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो भी एम्प्लॉयमेंट में ही आता है कि नहीं, और जो लोग लेबरर काम करते हैं वो भी एम्प्लॉयमेंट में आता है कि नहीं। दे आर लेबरर, दे आर एम्प्लॉइंग देमसेल्फ इंडिविजुअली एवरी डे विद द डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, है कि नहीं। कॉन्ट्रैक्टर के मतलब साथ वो लोग एम्प्लॉय होते हैं, और जो कि है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एम्प्लॉयड होते हैं, क्लियर। देन आता है अपना प्रोफेशन। प्रोफेशन भी मैंने अच्छे से समझाया कि प्रोफेशन का मतलब क्या है, यू गेन ए स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑन ए पर्टिकुलर मैटर, एक
परफेक्ट चीज को आपने परफेक्टली सीखा है, वही काम आपको आता है और वही काम आप दूसरों के लिए करते हो. इट इज ए काइंड ऑफ प्रोफेशन, इज ए काइंड ऑफ सर्विस. आप दूसरों के लिए काम करते हो, है कि नहीं. डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज आते हैं, जैसे कि ले लो डॉक्टर ले लो, इंजीनियर ले लो, टीचर ले लो, लॉयर ले लो, चार्टर्ड अकाउंट्स ले लो, है कि नहीं, आर्किटेक्चर ले लो. क्लियर. ये जो सारे लोग हैं क्या, मतलब एक स्पेशल नॉलेज को गेन करते हैं बाय गोइंग थ्रू ए स्पेशल स्टडी, जिसको मिलने के बाद, एक डिग्री मिल जाने के बाद यू आर कॉल्ड एज ए प्रोफेशनल एंड बाय प्रोफेशन यू आर डूइंग समथिंग, है कि नहीं. डॉक्टर ले लो, इंजीनियर ले लो, टीचर्स ले लो, ये सारे क्या काम करते हैं, ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने अपने नॉलेज के हिसाब से, उनसे उनको पैसा मिलता है, जिससे कि उनका ये जो रोजी रोटी चलता है. मतलब पैसा आएगा तो रोजी रोटी होगा, मतलब यही रोजी रोटी, फूड, शेल्टर, क्लॉथ, प्रेस्टीज, ये से सारे का सारा फुलफिल हो सकता है. ठीक है. एंड देन थर्ड वन, दैट इज बिजनेस. ओके, थर्ड वन क्या होता है, बिजनेस. अभी जो अपना कंसंट्रेशन है, हम अपने सब्सिक्वेंट क्लासेस में, हम द फर्स्ट क्लास इन द फर्स्ट टॉपिक वी हैव एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रोफेशन के बारे में पढ़ेंगे और बिजनेस के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस जो होता है, हम बिजनेस कर सकते हैं. बिजनेस का मतलब क्या है, किसी के अंडर काम करना नहीं है, कोई स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए, बस आपको एक मोटिवेट, यू मस्ट मोटिवेटेड कि मैं कुछ खुद के नॉलेज से, स्किल से, मनी से, यू रिक्वायर्ड सम स्किल एंड रिक्वायर्ड सम मनी, ये दोनों, एंड योर सेल्फ, क्लियर, सेल्फ मतलब डिटर्मिनेशन कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई ओन सेल्फ. ये एक डिटर्मिनेशन, सेल्फ मोटिवेशन, उसके साथ कुछ स्किल, कुछ पैसा, ये तीनों को मिला के आप कर सकते हो बिजनेस. ठीक है. तो बिजनेस हम क्या क्या कर सकते हैं, हम टू टाइप ऑफ, दो चीज कर सकते हैं बिजनेस के अंदर. एक तो हम इंडस्ट्री बेस्ड हो सकते हैं और कॉमर्स बेस्ड हो सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको बोला है, बिजनेस मतलब वेरी सिंपल, कुछ बनाना और बेचना. आपने कुछ, यू प्रोड्यूस समथिंग एंड सेल, जो आता है इंडस्ट्री में. इंडस्ट्री में क्या होता है, आप कुछ प्रोडक्शन करते हो, कुछ तैयार करते हो, कुछ बनाते हो, बना के वो चीजों को बाहर मार्केट में बेचते हो लोगों को. उससे कॉस्ट, आपको कुछ खर्चा आया, आपने बेच दिया, वो जो कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड करके बेच दिया, जो आया दैट इज योर प्रॉफिट. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस. आपका कॉस्ट आया 10 रुपए, आपको खर्चा हुआ बनाने में, आपने उसको 12 रुपए में बेच दिया, जो 2 रुपए आया, दैट इज योर अर्निंग, दैट इज योर इनकम. उससे आप ये सारी चीजों को फुलफिल कर पाओगे. ठीक है. तो ये आता है इंडस्ट्री. एंड देन दूसरा क्या आता है, द सेकेंड वन इज कॉमर्स. कॉमर्स मतलब वेरी सिंपल, यू आर नॉट डेवलपिंग समथिंग बाय योर ओन. आप खुद से कुछ भी डेवलप नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, आप सिर्फ जो दूसरे ने बनाया है उसको खरीद के लाए, अपना कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए, कुछ मॉडिफाई कर दिए. लाइक ले लो कि मैंने एक किलो का पैकेट लाया, फिर उसको 100 ग्राम का 10 पैकेट बना दिया, उसको बेच दिया, दैट इज कॉमर्स. मैंने वो जो पैकेट लाया मैंने 1 किलो का, वो मैंने थोड़ी ना बनाया था, मैंने सिर्फ क्या किया, वो जो 1 किलो का है उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, एक 100 ग्राम का, फिर उसको बेच दिया, दैट इज कॉमर्स. मतलब कॉमर्स में क्या आता है, यू आर ट्रेडिंग विथ अदर्स प्रोडक्ट. जो दूसरों ने जो बनाया है, दूसरे जो इंडस्ट्री बेस्ड पर्सन है, उन लोगों ने जो भी प्रोडक्शन किया है, जो भी बनाया है, वो सारे चीजों को आप क्या करोगे, खरीद के लाओगे उनसे लाने के बाद आप क्या करते हो, वो सारे चीजों को थोड़ा मॉडिफाई करते हो, कुछ भी अप अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, एंड देन वो सारी चीजों को बेचते हो. क्लियर. ठीक है. तो हम अगर कंसंट्रेट करें इंडस्ट्री में, बेसिकली इंडस्ट्री जो होता है 3 टाइप्स का इंडस्ट्री होता है. एक तो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, ये देखो ये है प्राइमरी, ये है दूसरा सेकेंडरी, एंड देन टर्शियरी. टर्शियरी मतलब सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री. इंडस्ट्री मतलब यू प्रोड्यूस समथिंग, आप कुछ प्रोड्यूस करोगे, बनाओगे. ठीक है. तो क्या आता है बनाने में, पहला आता है प्राइमरी, मीन्स कोई इंडस्ट्री करता है, मीन्स दोज आर डिपेंड अपॉन प्राइमरी थिंग्स और सेकेंडरी थिंग्स एंड ऑक्सिलरी थिंग्स. मीन्स उनका जो प्राइम फोकस रहता है, जो प्राइमरी जो होता है उनका प्राइम फोकस क्या रहता है, वो होता है 2 टाइप्स. एक होता है जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव. जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव मतलब प्राइमरी इंडस्ट्रीज सोली डिपेंड अपॉन नेचर मतलब भगवान ने जो नेचर, द व्हाट वी सी, द सैंड, ओके, एनिमल्स, सैंड,
और ले लो मिट्टी, ले लो द सॉइल, द वाटर, ये सारे चीजों को लेके हम जो जो बनाते हैं उसके ऊपर हम जो बेस्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे कि ले लो जेनेटिक, जेनेटिक मीन्स डायरेक्टली प्राइम, उसमें क्या आता है, उसमें आता है प्लांटेशन, पेड़ लगाना। आपने देखा होगा ना कि नर्सरी चलाते हैं, मतलब वो लोग का काम क्या है, वो पेड़ बनाते हैं, पेड़ को बेचते हैं, है कि नहीं, पेड़ वो खुद बनाते हैं। बना, आप बोलोगे सर पेड़ तो अपने आप उगता है, थोड़ी ना अपने आप मिट्टी डालते हो, है कि नहीं, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो है सीड्स, बीज डालते हो, डालने के बाद उससे पेड़ आता है, उसको एक आप एक मतलब एक कॉन्फाइंड प्लेस में रखते हो, फिर उसको लोग लेके खरीद के जाते हैं, वो अपना ग्रो करते हैं। तो आपने डेफिनेटली यू प्रोड्यूस, बिकॉज प्लांटेशन इज ए प्रोसेस विच रिक्वायर्ड ह्यूमन एफर्ट। नेचुरल में जो नेचर में होता था वो सब खत्म हो गया, नेचर में सब कुछ हो जाता था, अभी हम क्या करते हैं, पेड़ काटते हैं। तो ये भी एक इंडस्ट्री है कि हम पेड़ लगाएंगे, जो पेड़ से जो बेच के आप देखते हो, जो कि अपना अपना जो आता है डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट हम जो घर में यूज करते हैं, द मसाला, फ्रूट्स, वो सब कहां से आता है, पेड़ से आता है, पेड़ को उगाते हैं, वो जो बेचते हैं ना वही उनका प्रॉफिट है कि नहीं। सो द प्लांटेशन, पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री मतलब ये जो डिफरेंट डिफरेंट गोट, मतलब क्या है कि कुत्ते को पालना, गाय को पालना, सांड को पालना, मुर्गी को पालना, है कि नहीं, गोट को, क्लियर, ये सब इसको हम बोलते हैं पोल्ट्री फार्म। एंड एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री मींस वही पोल्ट्री, मतलब बेसिकली मतलब ये जाता है पोल्ट्री में जाता है बेसिकली टू थिंग्स, एक तो आता है मतलब जो मुर्गे, है कि नहीं, मुर्गी, सॉरी, मतलब जो कि क्या होता है कि हैन, एंड दूसरा जो आता है अपना गोट, क्लियर, ये दो का आता है। और बाकी जो आता है एनिमल हस्बेंड्री में आप कोई भी एक, ठीक है, एनिमल को आप अपना क्या करोगे, उनको मतलब एनिमल हस्बैंड मतलब यू प्रोड्यूस एनिमल्स, दैट मींस एक दो है, 2 से 4, 4 से 8, 8 हो गए, फिर 8 में से 2 को बेच दो, लाइक दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, और बाकी होता है फिशिंग, आप फिश एक पॉन्ड ले जाओगे, ये भी बिजनेस है ना, आप एक पॉन्ड को एक लीज में ले जाओगे, किसी एक का है, उसमें आप क्या जो बीज डालोगे उसमें जो आएंगे जो क्लियर फिश, उसको आप बेचोगे, बेचने से जो आएगा दैट इज योर बेनिफिट, दैट इज योर प्रॉफिट, क्लियर। पेगिंग, पेगरी, पेगरी मतलब जो पिग, जो कि अपने जो दूसरे मतलब यहाँ पे भी है, मतलब हर जगह पे देखा जाता है कि नहीं, पिगरी। तो ये जो सारे है ना जेनेटिक इंडस्ट्री है, मतलब यू प्राइमरली डिपेंड अपॉन नेचुरल थिंग्स। बाकी आता है एक्सट्रैक्टिव, एक्सट्रैक्टिव मतलब दिस इज आल्सो नेचुरल, बट जो क्या होता है ना कि जमीन के अंदर जो भी मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, उसको निकालना, निकाल के दूसरों को बेचना, जो कि आपने सुना होगा, है कि नहीं, माइनिंग, क्या होता है इसमें, माइनिंग, क्वेरी, क्वेरी मतलब जो खान, खान होता है, सोने का, सिल्वर का, क्लियर, आयरन का, डिफरेंट डिफरेंट सारे के सारे खान होते हैं, है कि नहीं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब आप क्या करोगे, अपना एक जमीन है, वहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स उगाओगे और उसको बेचोगे, क्लियर। ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन, हम जो ऑयल एंड गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं समंदर के बीच में से, आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज ये काम करते हैं स्पेशली, क्लियर। सो दीज आर ऑल वे टू अर्न समथिंग टू सेटिस्फाई योर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सारे के सारे क्या है, बिजनेस। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट जो आता है अपना सेकेंडरी, सेकेंडरी में क्या आता है, सेकेंडरी में 2 आता है, एक है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है कंस्ट्रक्टिव। एक आप तैयार करोगे, ये जो सारी चीजें ना ये सब थे, प्राइमरी मतलब सारे के सारे थे, आपने जस्ट उसको मॉडिफाई किया, है कि नहीं, वो प्रोसेस में आपने जस्ट थोड़ा कुछ इंटरवाइन किया। बट मैन्युफैक्चर में आपको फुल ऑन रिसोर्सेस, मटेरियल्स आपको यूज करना पड़ेगा, जो कहता है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल हम जो कपड़े पहनते हैं वो मैन्युफैक्चर होता है, वो एक कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, वो अपना बिजनेस करता है, उससे क्या होता है, उसको प्रॉफिट होता है। सीमेंट ले लो, कंस्ट्रक्शन काम में, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में यूज होता है कि नहीं, सीमेंट, आयरन, ओके, फूड, जो हम फूड खाते हैं डिफरेंट डिफरेंट पैकेड आइटम, वो सारे क्या है, वो रेस्टोरेंट में, वो भी क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही आता है कि नहीं, क्लियर। एंड देन आता है अपना कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव मतलब हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, बिल्डिंग बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं, ये सारे कंस्ट्रक्शन बिजनेस कौन करता है, कॉन्ट्रैक्टर्स, वो भी उनका बिजनेस है।
कॉन्ट्रैक्टिंग, क्लियर, बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, रेलवे बनाना, शिप बनाना, प्लेन बनाना, ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। सॉरी, ये सारे के सारे क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। ये सारे क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये भी एक टाइप का मैन्युफैक्चरिंग, मतलब दे आर मैन्युफैक्चरिंग और दे आर कंस्ट्रक्टिंग सम एसेट्स और गुड्स, क्लियर, जो कि दूसरों के काम में आएगा। ये भी एक बिजनेस है। देन नेक्स्ट आता है अपना टर्शियरी, मतलब सर्विस ओरिएंटेड। हम कुछ सर्विस देके काम बनाते हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट सर्विस। मैंने बोलूंगा कि मैं 5 ट्रक खरीद लिया और 5 ट्रक को मैंने भाड़े पे डाल दिया, मतलब जो भी किसी को भी एक जगह से दूसरी जगह पे अगर कुछ लेना है तो यूज माई ट्रांसपोर्ट, सो दैट इज माई बिजनेस। मैंने कुछ ट्रांसपोर्ट एमिनिटीज खरीद लिया, कुछ ट्रक्स खरीद लिया, कुछ मतलब मिनी ट्रक खरीद लिया, उससे मैंने कर रहा हूं। ये है क्या, सर्विस इंडस्ट्री, टर्शियरी और सर्विस इंडस्ट्री। तो इसमें क्या है, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, जो बैंक जो ओपन करते हैं, गवर्नमेंट करता है, प्राइवेट प्लेयर्स भी करते हैं, क्यों, बिजनेस, दैट इज बिजनेस, बेनिफिट के लिए, फायदा के लिए। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, वो भी बिजनेस है। सप्लाई, मतलब जो सप्लाई चेन, ये जो हम देखते हैं ना, जोमेटो है कि नहीं, अपना क्या है, स्विगी, जोमेटो और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज हैं, ठीक है, ये सारे हैं सप्लाई। एडवर्टाइजिंग, आपके लिए एडवर्टाइज करते हैं, आपके लिए वेयर हाउस प्रोवाइड करते हैं। वेयर हाउस मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जब कुछ हैवी आइटम लेते हो, लेके जाने के बाद सोचो कि आप उड़ीसा से कुछ महाराष्ट्र लेके गए हो कुछ चीजों को बेचने के लिए, तो एक दिन में तो सारे के सारे नहीं बेच होंगे ना। तो उड़ीसा से जब आप महाराष्ट्र लेके जाओगे, महाराष्ट्र में आपको एक जगह चाहिए जहां पे कि आप अपना सारा का सारा सामान स्टोर कर पाओ एंड देन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट थोड़ा थोड़ा निकाल के बेच पाओ, तो उसको हम बोलते हैं वेयर हाउस। तो वो भी उन लोगों का, सोचो कि महाराष्ट्र में आपने जो आदमी का मतलब जो घर को यूज किया है अपना सामान को स्टोर करने के लिए, उसका बिजनेस वही है। वो बोलता है कि आओ, जो भी जिसको भी वेयर हाउस मतलब सामान स्टोर करना है आप करो, उसके हिसाब से मैं आपसे रेंट लूंगा, सो दैट इज वेयर हाउस। ओके, क्लियर। सो दिस आर द ऑल वे ऑफ डूइंग इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, इसमें आपको कुछ अपना एफर्ट देना पड़ता है, खुद से आप कुछ डेवलप करते हो फिर उसको बेचते हो, ठीक है। एंड देन आता है अपना कॉमर्स। कॉमर्स मतलब आप खुद से कुछ नहीं बनाते हो, बस आप दूसरों से खरीद के लाते हो और फिर उसको बेच देते हो। उसमें क्या आता है, उसमें आता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड एंड ट्रेड। ट्रेड मतलब ले लो, वेरी सिंपल, ट्रेड मतलब बेचना, सिंपल हम बोलते हैं, ट्रेडिंग मतलब बेचना। तो इधर आपने थोड़ी ना सुना मतलब बना के बेचना, नहीं, बेचना मतलब ओनली बेचना, मतलब खरीद के लाके बेचे, डेफिनेटली। सो इसमें आता है क्या, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। जैसे कि आप देखे होंगे जो लोग बेचते हैं चीजों को, वो अपने घर में ही, इंडिया लेवल में ही बेचते हैं। वो क्या आता है, होम ट्रेड मतलब विद इन, फॉरेन मतलब आउटसाइड। होम में आता है क्या, लोकल, मतलब ले लो कि मैं सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट में बेचता हूँ, ओनली गंजाम डिस्ट्रिक्ट में, ओनली अपना जो है कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट ले लो, वो डिस्ट्रिक्ट में मैं बोल रहा हूँ, है कि नहीं, लोकल मार्केट में बेचता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड लोकल, क्लियर, लोकल ट्रेड। देन आता है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल मतलब मैं पूरा मेरा मतलब जो प्रोडक्ट है वो पूरा ओडिशा में बेचा जाता है। देन क्या है, और आई एम ए ट्रेडर बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, सो माय प्रोडक्ट इज टोटली डिस्ट्रॉयड सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड इन महाराष्ट्र। पूरा महाराष्ट्र स्टेट में मेरा नाम है, मैं अपने चीजों को बेचता हूं। और नहीं तो आता है नेशनल लेवल, मतलब इन ईच एंड एवरी स्टेट आई एम ए ट्रेडर बेस्ड अपॉन ओडिशा, बट आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस और my product are sell and ओडिशा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात, सारे जगह पे मेरा बेचते हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया में मेरा प्रोडक्ट सेल होता है कि नहीं, क्लियर। दैट इज आवर नेशनल लेवल। एंड देन फॉरेन ट्रेड में आता है। फॉरेन ट्रेड में क्या आता है, हम करते हैं इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्रीपोर्ट क्या है, इंपोर्ट मतलब कुछ बाहर से, दूसरी दुनिया से, दुनिया मतलब दूसरे कंट्री से कुछ खरीद के लाना और यहां पे बेचना, क्लियर। जो कि क्या करता है, ये जो है अपना जो फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब क्या करते हैं, सब अपने कंट्री का थोड़ी होता है। वो आप एक चीज को देखोगे, आपको पसंद आया, वो आप ऑर्डर करोगे। वो क्या करता है, वो चीज जहां पे भी हो, इट मे बिलोंग्स टू इंडिया, मे बिलोंग्स टू यूएस, मे बिलोंग्स टू चाइना, जहां पे भी होगा वो चीज को वहां से लाएगा फिर आपके पास बेच देगा। दैट इज इंपोर्ट करना और बेचना। एक्सपोर्ट इज ऑल्सो बिजनेस, मतलब आप अपने चीज को, आप बहुत हैवीली प्रोडक्शन करते हो, आप वो चीजों को यूएस भेज रहे हो, चाइना भेज रहे हो, नेपाल भेज रहे हो, बांग्लादेश भेज रहे हो, है कि नहीं, मतलब दैट इज एक्सपोर्ट। आप बेच रहे हो बाहर, मतलब बाहर कंट्री को आप बेचते हो। एंड देन एंट्रीपोर्ट। एंट्रीपोर्ट में वेरी सिंपल,
मतलब इसमें आपको क्या करना है, आप एक ही जगह पर रहोगे, एक से लाओगे दूसरे को बेच दोगे, मतलब द मिक्सिंग ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड एंट्रीपोर्ट। द मिक्सिंग ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दैट मींस यू हैव नो, मतलब आपने कुछ नहीं किया, वेरी सिंपल। आपको एक चीज, आपको सोचो कि आपने मतलब एक कंट्री ने आपको बोला कि मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो उसको, आप उसको बेचना चाहिए, बट वो चीज आपके पास भी नहीं है, आप क्या करोगे, यू एक्ट लाइक ए मिडिल मैन, आप एक कंट्री से लाओगे, एक से लाओगे, सोचो कि यूएस से लाए, चाइना को बेच दिए, दैट इज एंट्रीपोर्ट, मतलब मिडिल मैन। आपने ना तो इंपोर्ट, मतलब इंपोर्ट भी किया एक्सपोर्ट भी किया, दोनों, मतलब यू आर नॉट ओनली इंपोर्टिंग, सम आर ओनली इंपोर्टिंग, सम आर ओनली एक्सपोर्टिंग, बट यू आर डूइंग एवरीथिंग, दोनों कर लिए, मतलब एक को चाहिए, एक से खरीद के लाए, दूसरे को बेच दिए, इंपोर्ट किए एक्सपोर्ट कर दिए, दैट इज एंट्रीपोर्ट। ओके, ये जो सारे हैं ना, एवरीथिंग आर बिजनेस, मतलब ये वे में हम बिजनेस कर सकते हैं, क्लियर। और ये सारे चीजों को मैनेज करने के लिए हमारा क्या होता है, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, जो हम पढ़ते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूं, ये जो सारे चीजें हम करते हैं बिजनेस के अंदर, इंडस्ट्री ले लो, कॉमर्स ले लो, ये सारे चीजें हमें करना है, हमें खुद करना है, तो हम कैसे करेंगे, डिफरेंट फॉर्मेट में हम कर सकते हैं, जो कि हम बोलते हैं क्या, सोल ट्रेड, ओके, पार्टनरशिप, सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, देन आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, ओके, जॉइंट स्टॉक कंपनी, देन आता है कोऑपरेटिव, क्लियर। ये जो देयर आर द डिफरेंट फॉर्म, मतलब ये तरीके से हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, ये जो सारे काम कर सकते हैं। सोल ट्रेडर मतलब खुद, अपने आप ही मैं सारा कुछ करता हूं। ले लो कि मैं एक पोल्ट्री फार्म खोल रहा हूं, ठीक है, मैं अपने आप ही सारा का सारा काम करता हूं, तो मुझे बोलागा सोल ट्रेड, मींस आई एम यूजिंग दैट व्हाट फॉर्म ऑफ बिजनेस, सोल ट्रेड, मतलब मैं खुद ही करता हूं सारा का सारा काम। देन ले लो पार्टनरशिप मतलब और थोड़ा, मतलब एक मोर देन टू, दो और दो से ज्यादा मिलकर आप काम कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि आप अकेले नहीं संभाल सकते, क्योंकि ले लो ये जो ना प्राइमरी जेनेटिक, ये आप अकेले कर सकते हो, एक्सट्रैक्टिव के लिए आपको पार्टनर चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा मतलब काम, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ वर्क, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन पावर रिक्वायरमेंट, यू आर डूइंग बिजनेस। अगर आप देखो, अगर आप पिगरी कर रहे हो, फिशिंग कर रहे हो, तो एक अकेले से हो जाएगा, तो 2-3 जन को लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना जन आएंगे प्रॉफिट उतना डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिमेंबर, आपने अकेले फायदा मिला, आपको अकेले, पार्टनरशिप जो भी आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 जन 3 जन 4 जन 5 जन जितने भी होंगे, ठीक है। तो बिजनेस अगर थोड़ा बड़ा हो जाता है, इफ योर बिजनेस इज स्मॉल टू लार्ज, देन यू आर स्विचिंग टू अनदर फॉर्मेट, दैट इज सोल ट्रेड से आप पार्टनरशिप हो सकते हो और डायरेक्टली पार्टनरशिप शुरू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी मींस लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ ओनर, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो कि आप देखोगे कि ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ले लो, कि नहीं तो ये जो है ना टर्शियरी, और ये जो कॉमर्स में, ये सारे में क्या होता है, मोस्टली डिपेंड होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जैसे कि ले लो रिलायंस ले लो, है कि नहीं, टाटा ले लो, बिरला ले लो, जितने भी अपना टेलीकम्युनिकेशन है, रेलवे का है, ये सारा क्या करते हैं, ये सारा इधर पार्टनरशिप में चलाते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट वो डिफरेंट फॉर्मेट है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, बट इधर पार्टनरशिप में होता है, और नहीं तो सोल ट्रेड होता है, और नहीं तो जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है, ठीक है, ओके। और बाकी आता है कोऑपरेटिव मतलब ये भी होते हैं, एक टाइप का है, जिसमें कि किसी के पास कुछ भी नहीं है, मींस ले लो कि 1 to 10, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जन है, 10 जन के पास कोई भी कुछ नहीं है, मतलब किसके पास क्या क्या है, ये 10 जन मिले कोऑपरेटिवली, ये कुछ बिजनेस कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। मतलब ये जो ना कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है ना, ये टाइप का होता है, पार्टनरशिप जैसा ही होता है, बट पार्टनरशिप से थोड़ा अलग रहता है कि ये पूरा का पूरा जो प्रॉफिट मोटिव में करते हैं, ये प्रॉफिट मोटिव में नहीं करते हैं, ये सर्विस मोटिव में करते हैं, ताकि अपने जो कोऑपरेटिव में अपने जो सोसाइटी के लोगों को सारा का सारा बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, सारे के सारे हम पढ़ेंगे, मतलब कॉन्फाइनली आई कैन से ये जो आपके सब्सिक्वेंट क्लासेस में ये सारे के सारे चीजें ये जो हैं, ये भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, बिजनेस, ये सारे के सारे चीजों को हम 1 by 1 कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ओके, आ गया समझ में। सो फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्लासेस वी आर गोइंग
to discuss about, we will start our discussion from this. क्लियर? ह्यूमन एक्टिविटी तो हमने पढ़ चुके हैं पहले क्लास में. हम स्टार्ट करेंगे यहां से कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है. एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, फिर बिजनेस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन, उसके बाद बिजनेस में जाएंगे. एंड देन एक बार जब हम बिजनेस में आ गए तो पूरा का पूरा ये अंदर 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 पूरे के पूरे घुसते जाएंगे और नॉलेज गेन करते जाएंगे और अपने दिमाग को बड़ा बनाएंगे. और I can bet you on that after completing your first year and second year also, after first year you will definitely gain a lot of knowledge what is going on in the वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है. आप अभी सभी न्यूज सुनते होंगे बट आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा. I can bet you upon this कि after completing your first year course you will definitely easily can recognize what is going in the environment. वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, बिजनेस, ये प्रॉफिट, ये से जो है डिफरेंट टर्म्स will definitely came to know about those things. Clear? So we required your support for continue these classes. क्योंकि आप अगर वीडियोस देखोगे आपको पसंद लगेगा. And I am definitely request you to please comment your view. Your view मतलब that, see, these are not commercial videos. These are totally professionally, we are educational videos. So these are not commercial video. We are not asking for your comment to gain something. No. The only motto to required, we want your comment. That is only for one thing. We must assure ourselves कि yeah, ये बच्चे ने ये वीडियो को देखा और इसको समझ में आ गया. If you understand it, then please write yes sir, I understand it. If you don't understand, if you have any doubt, if you have any query, then you should ask there in the comment section कि सर ये जो point है मुझे समझ में नहीं आया, इसको और थोड़ा elaborate करो और थोड़ा एग्जाम्पल दो तो हम उसको समझाएंगे. मीन्स द पर्पज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज ओनली टू मेक यू नो, अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस. क्योंकि अभी तो जैसे कि आपको पता है कि जो सिचुएशन चल रहा है वो सिचुएशन में यही एक सोर्स टू गेन नॉलेज. ओके, सो प्लीज वॉच आवर वीडियोज रेगुलरली एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर वैल्यूएबल कमेंट सो दैट अकॉर्डिंगली वी कैन डेवलप, वी कैन क्लियर. डेवलप मतलब अगर सोचो कि आपको कोई एक चीज से परेशान हो रहा है, दिक्कत आ रही है, कोई एक चीज को आपको मतलब कोई भी एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव any problem relating to my teaching, my way of teaching, anything, any lighting problem, any problem, so you can share with us so that we can solve that problem in our next videos to provide you quality video classes. Okay, clear? So thank you all, and that's it for today's session. In our next session we are going to discuss the other concepts. Okay, thank you, bless you.